Okay, let's start. Okay, let's start. Okay, so yeah, let's start with the Python. Actually, एक सेशन हो चुका है, but ठीक है. So we'll see again what we are seeing. So yes, we are going to start with the Python. Okay, so what is Python? Python means it's a programming language, right? Python is a programming language. So Python is that is the fastest growing programming language in the world. See why Python is so famous. So there are some reasons. First reason, Python is very simple. Okay, that's the main reason. Okay, so why Python is so simple? Because the syntax of Python is very similar to the English language. Okay, that's the main reason. Even if you are from non-technical background, yes, you can learn Python easily. Okay, yeah, that's the first reason. Python is very simple. Okay, and second reason, the number of companies that are using the Python is also increasing. Yes. Third reason, number of developers that are using the Python is also increasing. Okay. Next reason, in terms of area, yes, you can implement Python anywhere. Okay, you can use Python for data science, for the machine learning, for the software development, web development, networking, hacking, software testing, animation, gaming. Okay, many of them. That means yes, you can use Python anywhere. Okay, so these are the some reasons that makes Python more efficient than any other programming language. Okay. Now after that, now see what is a Python. Actually, we will see the definition of Python now. So Python is high level, general purpose, interactive, and object oriented programming language. Okay, actually Python is the high level programming language. Now see what is the high level. Okay, see definition is very simple, right? So Python, yeah, it's a high level programming language. A language, yeah, it may be the high level or the low level. Okay, कौन सी भी language, it may be the high level or the low level. But actually machine was the binary language, right? Binary means that means it is in the form of ones and zeros, but we can't write the code in the binary, right? So for that purpose we have the high level programming language. High level means, okay, so high level means okay, first we'll see the low level. Low level means the language which are closer to the machine. Okay, the language which are closer to machine. So which is the low level language? Example, binary. Yes, okay, it is closer to the machine. So binary is also low level programming language. After that, then we have the assembly language. ओके, एक्चुअली असेंबली आपने कभी प्रोग्रामिंग या माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में देखा हो. ओके, ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो जस्ट रिमेंबर असेंबली इज आल्सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. After that, then we have the MATLAB. Also we have the C programming language. So these are the low level programming language. Okay, that means these are closer to the machine. Okay, machine easily understand this. Okay, so yes, okay, these are the low level programming language. And now what is the high level? High level means the language which are closer to the human language, which are closer to the human. Okay, which are closer to the human language. Human language means English. Okay, normal English, right? Okay, that is called as a high level programming language. That means it is in the human readable format. Okay, so see what are the examples. So C++, yeah, it's a high level programming language. Then also we have the Java, then also we have the Python, then we have the R programming language, and then many more, JavaScript, yeah. Okay, so these are the high level programming language. So yes, Python is also high level programming. Okay, it's very simple. It's closer to the human language, and low level means closer to the machine. Okay, closer to the machine. Okay, ठीक है. So Python is high level programming language. Okay, after that, second thing that we have seen, Python is general purpose, right? Okay, see what is a general purpose. General purpose means we can use Python anywhere. Okay, we can use Python for data science, for machine learning, artificial intelligence. Okay, for the AI, for software development, for networking, hacking, gaming, animation, software testing. Okay, so in the minimum of it.
क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर की फील्ड है अलग अलग, सभी फील्ड में हम पाइथन यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस। ओके, देखो कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है कि जो फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, कुछ लैंग्वेज बैक एंड के लिए यूज होगी, कुछ लैंग्वेज सिर्फ डेटाबेस के लिए यूज होगी। ओके, हर एक लैंग्वेज का यूज अलग अलग है। सो यस, पाइथन इज जनरल पर्पस। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट पाइथन इज इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मीन्स, ओके, इंटरेक्शन इज वेरी सिंपल। ओके, जो इंटरेक्शन होगा इट्स वेरी सिंपल। एंड आफ्टर दैट नाउ पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग language. Now see what is object oriented programming language. Okay, again a language it may be the procedure oriented or the object oriented. Okay, जो language होगी, या it may be the procedure oriented, या तो प्रोसीजर ओरिएंटेड होगी, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। ओके, या मे बी दोनों भी हो सकते हैं। ओके, दोनों भी हो सकते हैं। ओके, रिमेंबर नाउ सी व्हाट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड और व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। So in a programming, we have the concept class and object concept. Okay, and just remember, Python support for the class and object concept. Okay, so yeah, that's called as the object oriented program. हाँ, actual concept थोड़ी सी अलग है, but just remember, in a programming we have the class and object concept and Python support for that. Okay, so Python is also object oriented programming language. Okay, Python procedure oriented भी है, दोनों भी कर सकते हैं। Okay, we can do the procedure oriented programming as well as object oriented programming in the Python. Okay, हाँ, ये concept क्या है थोड़ा बाद में समझ में। Okay, what is object oriented? Just remember, in a programming we have the class and object concept and Python support for that. Okay, okay, now example, C is just procedure oriented programming language. Okay, what's the procedure oriented programming language? After that we have the C++, right? Yeah, C++ is the both, ये दोनों भी है। Okay, we can do the procedure as well as object oriented programming. Then we have the Java. Okay, remember, Java is 100% object oriented programming language. ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, नॉट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इट्स 100%। सो इसका मतलब होगा या इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन वी हैव द, ओके, मोर लैंग्वेजेस है, बट ठीक है। सो रिमेंबर, सी इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड, पाइथन इट्स अ बोथ, सी प्लस प्लस इट्स अ बोथ, and Java is जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट एंड पाइथन सपोर्ट फॉर दैट। ओके, बस इतना याद रखना। ओके, या ओके, विल सी इन द ऊप्स कंसेप्ट। ओके, जो ऊप्स कंसेप्ट होते हैं वहां पे देखने वाले व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो व्हाई वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, या these are the terms. That means in short, now Python is high level, general purpose, interactive and object oriented programming language. Okay, after that, yeah, Python, yeah, it's also called as it's a language of the AI and the ML. Okay, as compared to the other field. Okay, mostly we are using the Python in the machine learning, in the data science, in the data analytics, or in the AI field. Okay, so it's called as it's a language of the AI or the ML. Okay, ऐसे कुछ नहीं, इन द मशीन लर्निंग, इन द एआई फील्ड वी कैन यूज द जावा आल्सो। हम जावा भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ओके, बट नाउ डेज, या, मोस्ट यूज लैंग्वेज इज द पाइथन। ओके, ओके, after that, okay, now see who is the founder of Python. So the Guido van Rossum, he has implemented Python in 1990. Okay, and then see first version of Python that comes in the market, that is in the 1994, then second version in 2000, and in the third version in 2008, and in the market now, yeah, third version is going on now. Okay, after that, so why the name has given Python? Actually, Python means it's a snake, right? But it is not because of the snake. Actually, the founder, that is Guido van Rossum, he was the big fan of the BBC comedy series. The name is Monty Python's Flying Circus, and from that script, he has given the name that is a Python. Okay, but it's not because of the snake. But if you see the logo there, okay, in the logo, yes, we can see we'll get the two snake there, right? Okay, ठीक है, but it's not because of the snake. Okay, yeah. Now we'll see the features of the Python. Which are the features? Okay, that makes Python more efficient. So first feature, yeah, Python is very simple.
Yeah, it's very simple. It's very easy programming language. Okay, and if you are beginner in a programming language, then it's good to learn Python first. Okay, yeah, it's very simple. Hi. Huh? Nikita, no. Okay. So yeah, that's the first feature. Python is very simple. Next one, Python is very expressive. Yes, it's a very expressive programming language. आपको कोई भी कोड easily समझ सकता है. Okay. After that, Python is free and open source programming language. Free and open source means anyone can use it. Okay. It's a free and open source programming language. After that, it's a high level. High level means just we have seen that. Right. Okay. Closer to the human language. Correct. Okay. Then Python is a portable. Portable means we can install Python on any platform. Okay. It may be the Mac, it may be the Windows, it may be the Linux, कोई भी operating system. हम Python सॉफ्टवेयर कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं. That's called a portable. Okay. That's called as a portable. Or we can say that it's a platform independent. Okay. It's a platform independent. Or also you can say that it's a cross platform. ओके किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसे यूज कर सकते हैं ओके ठीक आफ्टर दैट इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस बिकॉज इट सपोर्ट फॉर द क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट राइट ओके ठीक है आफ्टर दैट पाइथन इज एक्सटेंसिबल नाउ सी व्हाट इज एक्सटेंसिबल ओके एक्सटेंसिबल मींस इफ देयर इज अ नीड हाँ yeah python is extensible see what is extensible if there is a need we can write some python program in other languages ओके यदि जरूरत है तो हम कुछ पाइथन कोड किसी अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं दैट मींस इट्स कंपैटिबल विद द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो या इट मे बी द सी सी प्लस प्लस और एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके दैट्स कॉल्ड एज अ एक्सटेंसिव ओके मतलब पाइथन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंपोर्ट हो सकता है हाँ इंपोर्ट कर सकता है import okay see what is the concept actually suppose in the python we have the one library numpy library okay it's a library library matlab see what is a library concept in the programming so library matlab it's a pre-written code okay code already written in behind the scene just we have to use it okay scratch से डेवलप करने की जरूरत नहीं है तो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है पैकेज होते हैं और मॉड्यूल कंसेप्ट होती है ओके दीज आर द सेम कंसेप्ट तो उसमें से एक लाइब्रेरी है इन द पाइथन दैट इज द numpy library okay so this library is written in python उसका जो behind the scene code है it is written in the python as well as in c programming language okay इसका मतलब हुआ yes python is compatible with the other programming language okay तो हाँ okay if there is a need जरूरत है तब okay if there is a need yes we can write some python program in other language also so yes we have the numpy library and this is written in the python as well as in the c okay उस जो लाइब्रेरी है ओके बिहाइंड द सीन उसका कुछ कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी लिखा है ओके रिमेंबर okay after that python is embeddable now see what is the embeddable embeddable means we can integrate python with the machine easily ओके सो हम पाइथन को मशीन के साथ थोड़ा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं ओके दैट्स द इम्बेडेबल आफ्टर दैट पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ पाइथन ओके सो पाइथन इज द yeah it's a interpreted programming language now see that a language okay language दो टाइप की हो सकती है yeah it may be the interpreted or it may be the compiled okay it may be the interpreted or it may be the compiled programming language now see what is the difference between them okay yeah if you have अब आपने कभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है तो आपको पता होगा इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू राइट द कोड okay that means you have to write the whole code then you can run the code then you can compile the code and then you will get the errors okay and then you resolve the errors and okay then that means okay this is the way to run the c programming language c program code now see there अब होता क्या है okay इसका मतलब होगा क्या actually c is the compiled programming language compiled मतलब execution is done at once okay जो execution होगा वो कब होगा
एट अ वंस, एक ही बार कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स कॉल्ड द कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay, so see what is a compiled execution is done at a once. Okay, and see what is the interpreted now. Okay, interpreted means execution is done line by line. यहाँ पे जो execution होगा वो कैसे होगा? Line by line होगा। Okay, execution is done line by line. Okay, आपको सिर्फ देखना है। See, okay, notes हम बाद में लेंगे। Okay, ठीक है। So execution is done line by line. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? You can write the single line of code. Okay, then you can check the output. If you got the errors, resolve the errors. Okay, at the same time, and then decide the next step. Okay, so yeah, that is called the interpreted programming language. Okay, that means execution is done line by line. Compile matlab execution is done at a once. Okay, so C is the compiled programming language. Okay, so see which are the interpreted. So yes, uh, Java is both actually. Okay, Java दोनों भी है. It's a compiled as well as interpreted. Python, yeah, Python is the interpreted. C is the also C is just compiled. C is just compiled programming language. Okay, yeah, that's the difference between the interpreted and the compiled programming language. So yes, Python is the interpreted programming language. Then yes, Python has the last set of standard library. Okay, Python के अंदर बहुत सारी libraries है. Okay, library मतलब pre-written code. Okay, it's a pre-written code, or you can say that it's a code written by someone else. Okay, and we have to use whenever we require. Okay, okay, that's called the library. Okay, so in the Python, actually in the Python we have above 1 lakh libraries. Okay, almost 1 lakh library. इतनी सारी libraries किसी भी programming language के अंदर नहीं. Okay, that's the advantage. So yes, Python has the last set of standard libraries. After that, Python support for the GUI. GUI means it's a graphical user interface. Okay, तो हम user interface भी create कर सकते हैं. That means we can use Python for software development. Okay, software development, web development के लिए भी Python का use कर सकते हैं. Because we have the libraries. We have the Kinter libraries, we have the Turtle libraries. Also, we have the Django there. Okay, for the web development. Yeah, so it support for the graphical user interface. After that, Python is dynamic type programming language. Okay, yeah, it is another best feature of Python. Okay, now see what is a dynamic type. Okay, what is a dynamic typing now? In terms of typing, huh? So a language, it may be the static typing or dynamic typing. Okay, it may be the static typing or it may be the dynamic typing. कौन सी भी लैंग्वेज हो, या तो स्टैटिक टाइपिंग होगी या तो डायनेमिक टाइपिंग। अब देखो स्टैटिक टाइपिंग होता क्या है। ओके, स्टैटिक मतलब फिक्स होता है। ओके, डायनेमिक मतलब ओके वी कैन डू द चेंजेस, राइट। ओके, इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग। ओके, अब इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग देख लेते हैं। सो स्टैटिक मीन्स, अब देखो यदि आप इन द प्रोग्रामिंग वी हैव द वेरिएबल कंसेप्ट। ओके, पता नहीं है तो सी व्हाट इज अ वेरिएबल। सपोज मुझे क्या करना है, एक 12 वैल्यू है। व्हाट इज अ 12? ओके, नंबर है। ओके, एक्चुअली इट्स इंटीजर। ओके, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो एक नंबर है एक्चुअली, राइट। तो इस नंबर को मुझे यूज करना है। तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। Okay, a is equal to 12. What is a now? 12. Okay, this is what's a variable. Okay, this is what's a variable. Now see that, so in the C programming language, in the C++, in the Java, यदि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यू हैव टू, मतलब वेरिएबल आपको लिखना है तो यू हैव टू राइट इन दिस वे, बिकॉज 12 इज द इंटीजर। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट हियर। जो वेरिएबल आप यूज करना चाहते हो उसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कंपल्सरी। Okay, so you have to write the int matlab it's an integer. Int a is equal to 12. Okay, so in the C++, in the Java, you have to write in this way. Okay, okay, so that means initialization of variable is compulsory in the static type programming language. If we miss, okay, आप यदि इसे मिस कर जाते हो तो इसका मतलब होगा will get the error. Okay, so that's called as a static typing programming language. Okay, what is a static typing? Initialization of variable is compulsory. Okay, that's called the static typing. Okay, remember. And what is the dynamic typing? That is a no need of initialization. Okay, initialization की जरूरत नहीं पड़ेगी, because Python interpreter automatically detects which variable you are going to use. Just write a is equal to, बस इतना ही लिखना, बस इतना ही लिखना। ओके, उसके पहले इंटीजर कुछ भी लिखने की जरूरत
नहीं है. Okay, that's called the dynamic typing programming. Dynamic typing. ओके. या इट में भी वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो उसे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं. जैसे कि इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज आपने लिखा ए इज इक्वल टू एक कैरेक्टर लिखा यस. ओके, एक कैरेक्टर है सपोज. ओके, तो यहाँ पे आपको सी एच ए आर लिखना पड़ेगा. ओके, अलग अलग. ओके, वी हैव द डेटा टाइप्स कंसेप्ट. ओके, विल सी लेटर. ओके, but remember, so Python is dynamic type programming language, so no need of initialization of variable. Just write a is equal to 12 and your job is done there. Okay, ठीक है. सो दैट्स कॉल्ड एज अ डायनेमिक टाइपिंग. ओके, सो इसकी डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है डायनेमिक टाइपिंग की. सो टाइप चेकिंग इज टेक्स प्लेस एट रन टाइम. ओके, मतलब जो आपका वेरिएबल है, जो आपने वेरिएबल लिखा है, उसका टाइप कब चेक होगा? रन टाइप पे चेक होगा. मतलब जब आप कोड रन करोगे तब वो चेक करेगा, और ये तो इंटीजर है, ये तो फ्लोट है. ओके, दैट मीन्स टाइप चेकिंग इज टेक्स प्लेस एट द रन टाइम. ओके, स्टैटिक टाइपिंग होता क्या है? तो वी हैव टू इनिशियलाइज फर्स्ट. उससे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. ओके, सो या इट्स कॉल्ड एज अ डायनेमिक टाइप. ओके, सो यस, पाइथन इज डायनेमिक टाइपिंग प्रोग्रामिंग language. Okay, so see which are the static type programming language. Example, so C, C++, Java. Okay, these are the static type programming language. And dynamic means yeah, it's a Python. उसके बाद R programming language. Okay, और भी कुछ है, but these are the main, right? Okay, so these are the dynamic type programming language. Okay. After that, now see the trend of Python. So see top 10 most popular programming language. So you can see that. So Python comes at the first place. Then you can see the Javas. Then you can see the other programming language. Okay. So these are some surveys actually that are done by some companies or the website. Now see the trend of Python. The yeah, it's going upward year by year. If you see the trend of the Python, yeah, it's going upward. And if you see the Java's trend, yeah, it's going downward. बट ऐसे नहीं होगा कि जावा विल गेट वैनिश, बिकॉज यस, जावा इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द इंटरनेट. ओके, इंटरनेट पे अभी भी जावा ही है. ओके, या देन यू कैन सी द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay, so these are the some service. So by stack, okay, Python is also called as it's a most loved, dreaded, and the wanted language. Okay, by Tripoli, okay, so Python is at the first rank. Okay, so on the GitHub, top machine learning language. So again, Python comes at the first place. Okay, it's a top machine learning language. So okay, okay. So now we'll see the comparison. Okay, we'll see the comparison between Python with the other programming language. So first, that's the semicolon. So in the Python we don't require semicolon. Okay, semicolon की जरूरत नहीं है. तो आपने कभी या आपने कभी C या C++ यूज की है, तो yes, we are using the semicolon there. end of the Right. Okay, semicolon means that will be the end of the line. Okay, it's a termin. Okay, that means statement terminate. Okay, so it's compulsory to write the semicolon at the end of the line. Okay, if you miss, that means you will get the error. Correct. Okay, ठीक है. But in the Python we don't require semicolon. Okay, Python में semicolon की जरूरत नहीं है. Okay, so अब देखो क्यों? Because in the Python new line is a new statement. Okay, new line ही क्या होगी? New statement होगी. So we don't require semicolon. Okay, that's the first comparison. After that, curly bracket. No, we don't require curly bracket. Okay, in the C, C++, we are using the curly bracket, right? Okay, what is the use of the curly bracket? कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं हम नॉर्मली? ओके, सपोज आपको मेन फंक्शन लिखना है, तो आपका कर्ली ब्रैकेट मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है. ओके, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होगा, सो दैट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, इसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड. ये आपका आपकी जो कोड होगा उसका एक ब्लॉक होगा. ओके, यदि मेन फंक्शन तो मेन फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, यदि आपका फॉर लूप है तो फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, सो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ code, curly bracket. But in the Python, we don't require curly bracket, because in the Python we have the different concept, but we will see later. Okay, but yes, we don't require curly bracket. Then it's a static type. No, it's not static type. It's a dynamic type. Okay, dynamic type means single line dynamic type.
No need of initialization of variable. Okay, no need of initialization of variable. मतलब type checking is takes place at the runtime. Okay, just write a is equal to है, उसे initialize करने की जरूरत नहीं. Okay, that's called as a dynamic type. Compiled, no, it's not a compile, it's an interpreted programming language. Now interpreted means execution is done line by line. Okay, line by line. Okay, yeah, oops concept, these are the same. Okay, oops means class, object, encapsulation, abstraction. Okay, these are the different oops concept. These are the same in Python programming language, but थोड़ी सी simple है. Okay, as compared to the Java or the C or the C++. Okay, yeah, that's the comparison between Python with the other. Now see then, if suppose you have to write a one program to print hello world, so in the C programming language, yes, you require 3 to 4 lines. Yes, you require 3 to 4 lines, because first you have to fetch the header files, then write the main function, then go for the printf function. Correct? Okay. In the Java, again you require you require 3 to 4 lines. Okay. मतलब जावा की स्टार्टिंग तो क्लास से ही होगी, बिकॉज जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इफ यू हैव टू लर्न द जावा, दैट मींस यू हैव टू लर्न फर्स्ट सम उप्स कंसेप्ट या सी प्लस प्लस के कुछ कंसेप्ट आने चाहिए. Okay, and see in the Python you just require one line. Okay, that means complexity is so much reduced in the Python. Okay, complexity बहुत कम, इसका मतलब होगा you require just fewer line of code. Correct? Okay, development time भी कम होगा. Yes, development time भी कम होगा. Okay, see here. So development time for the Python, yeah, it's very less as compared to the other programming language. Okay, मतलब उस कोड के लिए कितना टाइम लगेगा. Okay, that's a development. After that, see here. So this is a code for the crawler, okay, which is written in Java on the left hand side, and the same code is written in Python here. So we can compare this. So maybe जहाँ पे 100 lines लगने वाली है, same code, yes, you can write just within 10 or 20 lines. Okay, जहाँ पे 1000th line लगने वाली है, वही कोड आप 100 या 200 लाइन में भी कर सकते. Okay, so that means complexity is so much reduced in Python. You require just fewer line of code. Okay, after that. Now see, Python in machine learning. Actually, Python to general purpose, right? It's a general purpose. We can use Python anywhere. Okay. So, but yeah, Python is most popular in machine learning. Actually, in the machine learning, we have the R programming language also. Okay, we say R भी use होती है, but you can see the trend. It's a Google trend. So, as compared to the R programming language, Python is most used programming language. Okay, see why. Okay, you can see also about 76% data scientist or the AI engineer or the ML engineer are using the Python in the machine learning. Then R comes. Okay, ठीक है. So see why Python is most popular in machine learning. वैसे R भी है, but R is just मतलब it's a 100% statistical programming language. Python कैसी है? जनरल पर्पस है, इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं. बट आर जस्ट फॉर द मशीन लर्निंग, ये सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है. ओके, बट ठीक है, तो हम पाइथन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. बट नाउ सी व्हाई पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर इन मशीन लर्निंग. सो फर्स्ट रीजन, इट्स वेरी सिंपल. या दैट्स द मेन रीजन. ओके, ऐसे कुछ नहीं, हम सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, जावा भी यूज कर सकते हैं, बट दैट्स द मेन रीजन, इट्स वेरी सिंपल. ओके, एंड इन द मशीन लर्निंग yes we have to implement the algorithms there. So by using Python, it's very simple to implement the algorithm. हम easily implement कर सकते हैं. Okay, that's the main reason. And second reason, yeah, it support for the many libraries and the framework. Okay, we have seen that Python support for the large set of libraries. Okay, तो बहुत सारी libraries है, बहुत सारे framework present है. See which are the framework or the libraries. In the Python we have the NumPy library. Okay, then we have the pandas, then we have the matplotlib, scikit-learn, then we have the seaborn. Also we have the tensorfloat, keras, pytorch, django. Also we can do the web scraping. Okay, so these are the libraries are present in Python. Okay, we'll see. अब इसका यूज आपको बाद में पता चलेगा. What is numpy? It is used to create the multi-dimensional array. Okay, pandas to import the data from different sources, data manipulation, data analysis करने के लिए we are using the pandas. Matplotlib and the seaborn, these are the data visualization libraries. We can plot the graphs, charts. Okay, scikit-learn, yeah, it's a machine learning library. Okay, all machine learning algorithms are present here. Okay, then we have the TensorFlow, then we have the Keras. These are the deep learning libraries.
Okay, these are the libraries used to create the neural network. Okay, this is a part of the deep learning AI. Okay, then also we have the PyTorch. Okay, Django for the web development. Okay, then for the web scraping we have the beautiful soup pattern. Okay, उसके लिए भी अलग अलग libraries present. Okay, after that, okay, that's the second reason. First reason, yeah, it's very simple. Second reason, yeah, it's support for the many libraries and the framework. Third reason, Python has large communities. ओके, आप देखो कौन सी भी लैंग्वेज कब फेमस होती है, जब उस लैंग्वेज को बड़ी कंपनीज यूज करती है या उसकी कम्युनिटी ज्यादा हो. ओके, and see that. So yes, most of the companies, okay, like Facebook, okay, Insta, Google, they are using Python as a main programming language or a support programming language. Okay, now see that. So in the world now, about 8.2 million developers are using the Python now. ओके, दैट मीन्स यस पाइथन हैज लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट. अब देखो इतनी सारी लाइब्रेरीज क्यों है पाइथन के अंदर, क्योंकि उसकी कम्युनिटी क्या होगी ज्यादा ही. ओके, दैट्स व्हाई. ओके, इतनी सारी लाइब्रेरीज है, ज्यादा रिसर्च हो रहा है. ओके, ठीक है. सो यस पाइथन हैज अ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट. आफ्टर दैट, इन टर्म्स ऑफ जॉब, ओके, एक्चुअली पाइथन तो जनरल पर्पस है, तो इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं. यदि आप नेटवर्किंग में भी जाते हो तो वहां पे भी पाइथन यूज होती है. ओके, आप यदि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जाते हो तो यस वी आर यूजिंग द पाइथन आल्सो, तो वहाँ पे भी पाइथन यूज कर सकते हो. सो इट्स अ जनरल पर्पस. So that means you can work as a software developer, okay, data scientist, data analyst, business analytics, okay, then web developer, right? Then machine learning engineer, AI engineer, okay, and the many more, because it's a general purpose programming language. Yeah, in terms of pay scale, yes, Python developer has great demand in the market. And see, top 20 emerging jobs in the world now. So, machine learning engineer, data scientist, or the data analytics, these are the top 20 emerging jobs in the world now. And yes, here we are using the Python. Okay. Oh, after that, Python application. See, okay, it's the general purpose, right? Python is general purpose. So we can use Python for the web development. Yes, हम वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द Django, we have the Flask, we have the Bottle. Okay, these are some framework are present in Python that are used for the web development. Okay, to create the web-based application. Okay, then we can use for the data science. Okay, data science के लिए भी use कर सकते हैं. Then for the machine learning, then for the AI, okay, and the many more. We can use Python for software testing, for the networking, then for the gaming, okay, then for the app development. Okay, yes, we can use Python anywhere. Yeah. So this is just what is a Python and why Python is so famous and why you have to learn Python as your first programming language. अब देखो, we have seen just advantages of Python. ओके, अब पाइथन के कुछ लिमिटेशन भी होंगे, राइट. ओके, हर एक लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ थोड़े से लिमिटेशन भी होते हैं. जैसे कि जावा है. ओके, जावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, राइट, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. ओके, उसे लर्न करना है तो मे बी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. ओके, तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज. ओके, सो वी हैव सीन द एडवांटेजेस, राइट. तो अब पाइथन के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? लिमिटेशन, स्लो, राइट. पाइथन स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्यों? एक तो लाइन बाय लाइन जाएगी, राइट. ओके, वो भी स्लो बन जाती है. ओके, लाइन बाय लाइन जाएगी. ओके, दैट्स द मेन रीजन. और सेकंड रीजन कि पाइथन के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रेजेंट है. तो इससे भी क्या होता है, आपकी लैंग्वेज स्लो बन जाती है. ओके, दैट्स द लिमिटेशन. ओके, फर्स्ट लिमिटेशन, पाइथन इज स्लो. बट ऐसे नहीं कि स्लो ही है, बिकॉज यदि आपकी जो सिस्टम है, यदि यू हैव द बेस्ट सिस्टम, ओके, आपके पास प्रोसेसर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो यस पाइथन इज ऑल्सो गुड वन. ओके, बट हाँ, एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, या इट्स स्लो. ओके, नॉर्मली इसलिए हम पाइथन को गेमिंग में ज़्यादा यूज नहीं करते. ओके, वैसे पाइथन हम गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पे स्पीड मैटर है. ओके, वहाँ पे स्पीड मैटर करेगा. तो दैट्स वाई. अनदर सेकंड रीजन, पाइथन की जो सिक्योरिटी है वो कम है थोड़ी सी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. जैसे कि जावा और द सी प्लस प्लस, उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी है. ओके, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है, बहुत सारी कंसेप्ट अवेलेबल है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. ओके, तो यहाँ पे पाइथन में थोड़ी सी कम है. ओके, सो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ पाइथन. ओके, और एक लिमिटेशन है कि पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं है एक्चुअली, राइट. ओके, वी आर सीइंग दैट पाइथन के अंदर एक थोड़ी अलग कंसेप्ट है
दैट इज अ लाइन इंडेंटेशन. ओके, दैट विल सी लेटर. बट ये थोड़ा सा टेडियस बन जाता है. ओके, ये थोड़ा सा क्या बन जाएगा, टेडियस बन जाएगा. ओके, ठीक है, वो भी एक लिमिटेशन है. Okay, so this is just theoretical part of the Python, and see what we are going to see in Python. So first we are going to cover a core Python. Okay, in the basic Python, we are going to cover basic data structures, function, module concept, and then in advanced Python, we are going to learn OOPS concept, multi-threading, database connection, regular expression, and the many more things. बहुत सारी चीजें. Okay, in the advanced Python. because जो syllabus है, it is for the both. मतलब इसके बाद आप डेवलपमेंट के लिए भी जा सकते हो, या डेटा साइंस के लिए भी जा सकते हो, या डेटा एनालिटिक्स के लिए भी जा सकते हो. एक्चुअली आप डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए इतनी ज़्यादा पाइथन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, राइट. क्योंकि मतलब जैसे कि डेटा एनालिटिक्स के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो आप स्किप भी कर सकते हो. बट आई थिंक एज अ प्रोग्रामर, ओके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छी आनी चाहिए. ओके, वो कौन सी भी कर सकते. एक तो अच्छा है. ओके, डेवलपमेंट और डेटा साइंस के लिए तो अच्छी आनी ही चाहिए. हाँ, मे बी डेटा एनालिटिक्स के लिए आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो. ओके, बट फॉर डेटा साइंस एंड फॉर द डेवलपमेंट, ओके, सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको अच्छी आनी चाहिए. ओके, जब पाइथन पाइथन के साथ आप डेटा साइंस कर रहे हो या डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो इसका मतलब यू शुड नो द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, उसके बेसिक कंसेप्ट, उसके एडवांस कंसेप्ट. Okay, ठीक है. Now see how to install the Python. Okay, so yeah, okay, just see. ये बाद में भी कर सकते हैं आप. So first you have to install the Python from official website. Okay, so in the Google, yes, you can search the Python. Okay? Search Python. We'll get the official website. That's the python.org. It's the official website of Python. Okay, run here. Okay, go there. Yeah, that's the official website. We'll get the download section. Click on the download section. Now see, in the download section, we'll get the latest version of Python. Yeah. So I got here download Python 3.11.3. It's the latest version of Python. Okay, so yes, you can download it. अभी अभी भी download करके इसे install कर सकते. It's very simple. So just search Python in the Google. Okay, we'll get the python.org. It's the official website. Okay, and click on the download section. In the download section, we'll get the Python 3.11.3. That's the latest version of Python. Okay, so download it and install it. Okay, installation is very simple. Next, 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 and finish. ओके, बस इतना ही करना है. ओके, हाँ, बट रिमेंबर, सो कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये विंडोज 7 पे नहीं चलेगा. ओके, जो लेट ओके, मोस्टली आपके पास क्या होनी चाहिए, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए. ओके, रिमेंबर. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट. ओके, नाउ वी हैव द डिफरेंट आईडी नाउ. ओके, आईडी मतलब इट्स अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे आप कोड कर सकते हो. वी हैव द वीएस कोड, राइट. वी हैव द पाइचार्म, वी हैव द जुपिटर नोटबुक. अलग अलग आईडी होते हैं जहाँ पे आप गूगल कोलैबोरेटर्स होते हैं. ओके, बहुत सारे आईडीज हैं जहाँ पे आप कोड कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द जुपिटर आईडी. ओके, मोस्टली हम 90% जुपिटर ही देखने वाले हैं. ओके, मे बी कुछ सेक्शन हो गए जहाँ पे हम पाइचार्म या वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं. ओके, बट मोस्टली वी आर यूजिंग द जुपिटर आईडी. Okay, now see how to install the Jupyter now. Okay, first you have to install the Python from official website. Now see there how to install the Jupyter now. To install the Jupyter, you have to install the Anaconda. Okay, एक सॉफ्टवेयर है Anaconda सॉफ्टवेयर, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा because Jupyter is available in the Anaconda. Okay, see, so you have to search Anaconda there in the Google. Okay, you can search Anaconda download. अगेन यू विल गेट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनाकोंडा. एनाकोंडा की आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी. दैट्स anaconda.com. गो देयर. ओके, नाउ सी देयर. ओके, ऑन द ऑफिशियल ऑन द होम पेज विल गेट द डाउनलोड ऑप्शन. ओके, इट्स अवेलेबल फॉर द मैक. ओके, विंडोज लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है. ओके, तो यू कैन डाउनलोड इट. ओके, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है. बट रिमेंबर एनाकोंडा इज अ एवी सॉफ्टवेयर. ओके, ये भी सॉफ्टवेयर है, तो मे बी ये टाइम लग इंस्टॉल करने के लिए आपको टाइम लग सकता है. ओके, आधा घंटा लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है. इट डिपेंड्स ऑन यूर सिस्टम. ओके, रिमेंबर.
So you have to install the Anaconda here. Actually, what is Anaconda? Anaconda is the package distribution. It's a specially designed for the data science community. ओके, जो डेटा साइंस के लिए जो अलग अलग टूल्स लगते हैं वो सभी वो आपको एनाकोंडा के अंदर मिल जाएगी। ओके, जुपिटर इन मोस्टली जुपिटर यूज कहाँ पे होता है? डेटा साइंस के लिए या डेटा एनालिटिक्स के लिए। ओके, तो ठीक है, तो डेटा साइंस के जितने भी टूल्स है तो वहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा, पाइचाम भी मिल जाएगा, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी ऑलरेडी इंस्टॉल है वहाँ पे इन द एनाकोंडा। बट टू इंस्टॉल द एनाकोंडा से सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए। बट ठीक है, यदि आपके पास 4 GB रैम है तो मे बी आपका लैपटॉप स्लो हो सकता है। ओके, सो प्रेफर 8 GB रैम, मिनिमम 8 GB रैम। यदि आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हो तो कम से कम 8 GB तो होनी चाहिए। ओके, 4 GB पे नहीं चलेगा। ओके, हाँ, पाइथन चल जाएगा, पाइथन कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पाइथन पर उसके बाद डेटा साइंस डेवलपमेंट कम से कम 8 GB तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, रैम ओके सेम होनी चाहिए। ओके, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। ओके, ठीक है, और यदि ओके प्रोसेसर अच्छा है तो इट्स गुड वन। ओके, क्योंकि नॉर्मल इन डेटा साइंस इन डीप लर्निंग हमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ओके, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं भी है तो यस वी कैन यूज द गूगल कोलैब। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नहीं है तो गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हो। इट्स ऑनलाइन इंटरप्रेटर। ओके, हाँ, पाइथन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पाइथन हो रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ, बाद में आप उसकी थोड़ी सी रैम क्या कर सकते हो, इंक्रीज एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ओके, मे बी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, उसके बाद आप बाद में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ठीक है, आपने एनाकोंडा को डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपने एनाकोंडा को इंस्टॉल भी कर लिया। ओके, नाउ सी दैट इसके बाद क्या करना है? सो जस्ट सी, सो यू हैव टू सर्च द एनाकोंडा। अब देखो एनाकोंडा रिलेटेड बहुत सारे आपको ऐप शो हो रहे हैं। ओके, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट शो हो रहा है, एनाकोंडा नेविगेटर भी है, एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक भी है बिकॉज इट्स अवेलेबल इन द एनाकोंडा। ओके, एनाकोंडा पावर शेल। सो ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन द एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, दैट्स अ मेन टूल। ये मेन टूल होता है। सो नाउ यू हैव टू ओपन द एनाकोंडा नेविगेटर। जस्ट सी, आपको देखना है। कल कल वी आर गोइंग टू सी लेटर। ओके, फिर से वो देखने वाले हैं। ओके, इसका यूज कैसे करना है। या थोड़ा सा टाइम ले सकता है यहाँ पे। ओके, दैट्स द लोगो ऑफ द एनाकोंडा। यस, ओके, देखो टास्क बार पे आपको सिंबल मिल जाएगा। ओके, दैट्स एनाकोंडा सिंबल। सी हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। सो दैट्स योर एनाकोंडा नेविगेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, जुपिटर लैब है, नोटबुक भी है जो अभी हमने देखा। ओके, हमें जुपिटर नोटबुक यूज करना है। देन यू हैव द पाइचाम इज आल्सो देयर। ओके, कुछ आर स्टूडियो भी है। ओके, तो बहुत सारे टूल्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है? जुपिटर नोटबुक। तो ठीक है, हम यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ से भी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हैं, बट हर बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लोज दिस। ओके, डायरेक्टली आप यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सर्च कर सकते हैं, विल गेट जुपिटर नोट। ओके, ठीक है, तो या तो वी आर गोइंग टू यूज द जुपिटर नोटबुक। आपको सिर्फ सर्च करना है जुपिटर नोटबुक। यदि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर देते हो तो आपको सर्च ऑप्शन में मिल जाएगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट सर्च ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू सर्च जुपिटर नोटबुक। ओके, ठीक है, तो इसे आपको ओपन करना है। जस्ट क्लिक देयर। बट रिमेंबर, जुपिटर नोटबुक इज वेब बेस्ड इंटरैक्टिव आईडी। मतलब वो कहाँ पे ओपन होगा? आपके वेब ब्राउजर में। क्योंकि आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ओपन होगा सीधे। तो या इट्स अ क्रोम ब्राउजर। ओके, सो आई गॉट द जुपिटर हियर। ओके, मे बी यदि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है तो वहाँ पे ओपन होगा। बट रिमेंबर, डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होना चाहिए। ओके, यदि है आपका जुपिटर नोटबुक इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है तो यू हैव टू चेंज योर डिफॉल्ट ब्राउजर। ओके, फ्रॉम योर लैपटॉप सेटिंग्स। ओके, फ्रॉम योर सिस्टम सेटिंग। ओके, या इट मे बी द एज और इट मे बी द क्रोम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओपेरा भी है बट ठीक है, इट्स मोस्टली क्रोम या एज यूज करो। ओके, ठीक है, सो दिस इज द होम पेज फॉर द जुपिटर। ये आपका जुपिटर का क्या होगा? होम पेज होगा। एंड रिमेंबर, यदि आपका जुपिटर ओपन होता है तो आपको यहाँ पे नीचे एक ओके विल गेट द ब्लैक विंडो, एक ऐसी विंडो मिलेगी। एक्चुअली इट्स सर्वर। ओके, ये सर्वर होता है एक्चुअली। ओके, इसका मतलब जब मतलब ये ऑलवेज रन होना चाहिए।
आपने इसे क्लोज कर दिया तो आपकी जुपिटर नोटबुक रन नहीं होगी। ओके, इट्स लाइक अ सर्वर। तो यहाँ पे देखो, सो एक्सेस ओपन, ओके, मतलब एक सर्वर क्या है आपका, रनिंग मोड में है। इट्स ऑलवेज इन द रनिंग मोड, तो इसे आपको क्लोज नहीं करना। ओके, इस विंडो, ठीक है। सो दैट्स अ जुपिटर नोटबुक, दैट्स अ होम पेज, इट्स अ करंट डायरेक्टरी फॉर द जुपिटर। देन वी हैव द न्यू ऑप्शन हियर। Okay, in the new option we have the Python 3. Okay, now click on the Python 3, we'll get the another tab, and that's your Jupyter notebook. ये होगी आपकी Jupyter notebook, and yes, we can do the Python coding here. हम यहाँ पे भी Python coding कर सकते हैं। Also we can use the VS Code। हाँ, यदि आप डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, मतलब इसके बाद आप Django करना चाहते हो, then yes we can prefer the VS Code or the PyCharm। ओके, हाँ, बात इसके बाद डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो तो Jupyter is a good one। बट एज अ स्टार्टिंग पर्पस, कोई भी हो, ओके, कौन सा भी सेक्टर हो, बट जुपिटर विल बी द बेस्ट। ओके, फिर नॉर्मली होता क्या है वीएस कोड के अंदर क्या होगा, बिकॉज इट्स अ नोटबुक। नोटबुक मतलब यू कैन राइट द मल्टीपल पाइथन कोड एट द सेम टाइम। ओके, इट्स लाइक अ नोटबुक। तो इन द वीएस कोड और इन द पाइथन होगा क्या, यू हैव टू राइट द सिंगल लाइन ऑफ, मतलब यू हैव टू राइट द सिंगल पाइथन फाइल देयर। ओके, हर एक पाइथन फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी बहुत सारी पाइथन फाइल हो सकती है। ओके, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो आपको नोट्स के लिए यूज करना है तो हर बार उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा चेक करने के लिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट द मल्टीपल पाइथन कोड इन अ सिंगल फाइल। ओके, दैट्स कॉल्ड जुपिटर नोटबुक। ओके, यहाँ पे आप कोडिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप नोट्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, हार्ड कॉपी यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, मोस्टली हमें जो भी नोट्स लेने हैं, जो भी कुछ करना है, हम जुपिटर नोटबुक पे ही करने वाले हैं। हार्ड कॉपी की जरूरत भी नहीं है। ओके, जस्ट कम विद द जुपिटर नोटबुक। ओके, ठीक। हाँ, आप पर्सनल यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नोटबुक ला सकते हो, आप आपके नोट्स भी ले सकते हो, बट मोस्टली सभी नोट्स हम यहीं पे लेने वाले हैं। ओके, रिमेंबर। ओके, नाउ सो दिस इज योर जुपिटर नोटबुक। बाय डिफॉल्ट विल गेट द नेम अनटाइटल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। सो अब मेरी जो फाइल होगी, दैट्स नेम इज द इंट्रो। इट्स इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रो टू पाइथन। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, ठीक है, रीनेम इट। Okay, so that's your intro to Python. Okay, so this is called as a code cell. Okay, आपके सामने जो शो हो रहा है, this is cell. Okay, it's a code cell. That means you can write the code here. आप यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हो। See, so we are going to write our first Python program. That's a print hello world. See there. So in the Python we have the print function. Okay, what is the use of the print function? राइट, मतलब जो मुझे कुछ शो करना है ऑन द कंसोल, ऑन द आउटपुट विंडो, सो वी आर यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। ओके, एंड आफ्टर द दिस फंक्शन नेम, इट्स कंपल्सरी टू राइट द पैरेंथेसिस। रिमेंबर, फंक्शन के बाद कंपल्सरी क्या होगा, पैरेंथेसिस होगा, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट कर्ली ब्रैकेट। कंपल्सरी पैरेंथेसिस, दैट मींस इट्स अ फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन ही होगा। रिमेंबर, पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिहाइंड द सीन जैसे लिखा है वैसे आपको यूज करना पड़ेगा। सो ऑल फंक्शंस आर इन लोअर केस। सभी फंक्शन लोअर केस में है, तो आपको लोअर केस में यूज करना पड़ेगा। सो हम इसे पी को कैपिटल पी नहीं लिख सकते। ओके, रिमेंबर, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मुझे क्या करना है, हेलो वर्ड को प्रिंट करना है। सो इन द डबल कोट मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। अभी डबल कोट क्यों लिखा, दैट विल सिलेक्ट। तो बट मुझे हेलो वर्ड को क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे शो करना। सो राइट द हेलो वर्ड देन। Okay, done. And to run the cell, okay, so from keyboard you can use the shift plus enter at the same time, and you will get the output immediately. आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इमीडिएटली उसी टाइम पे मिलेगा। सो यस, आई गॉट द हेलो वर्ड। ओके, इट्स वेरी सिंपल, राइट। ओके, यही प्रोग्राम यदि आपको सी में करना है, तो यू हैव टू फेच द हेडर फाइल देयर, राइट द मेन फंक्शन, देन राइट द printf फंक्शन लाइक दिस। ओके, इन द जावा, ओके, you have to start with the public static। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट, इट्स 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहाँ पे क्लास से डायरेक्टली स्टार्ट हो। ओके, ठीक है। सो इट्स योर पाइथन प्रोग्राम। ओके, दिस इज द वे टू राइट द कोड हियर, एंड देन यू कैन रन द कोड। हाँ, कोड रन करने के बाद यू आर गेटिंग द न्यू सेल। ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगी, न्यू सेल मिलेगी। एंड बाय डिफॉल्ट ये सेल जो होती है, इट्स अ कोड सेल। क्या होती है, कोड सेल। एंड रिमेंबर, जुपिटर नोटबुक इज द ऑटो सेल, मतलब आप जो कोड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेव होगा। ओके, सेव करने की जरूरत नहीं होती, बट यस, जस्ट टू अवॉइड द लॉस यू कैन यूज द कंट्रोल एस एट द लास्ट। लास्ट में आप कंट्रोल एस भी प्रेस
कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव द इन द फाइल सेक्शन वी हैव द सेव एंड चेक पॉइंट, कंट्रोल एस, मतलब वही लास्ट में कर सकते हैं, बट इट्स ऑटो सेव। ये ऑटो सेव होती है, बट यू कैन यूज इट। ओके, नाउ आफ्टर दैट, नाउ सी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो, राइट। सपोज मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ऐसे इसे रन कर दिया, तो अब क्या होगा, विल गेट द एरर, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग की कुछ स्टाइल होगी, कुछ रूल होगे, कुछ ग्रामर होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली। तो ठीक है, सो विल गेट द एरर हियर, राइट। ओके, ठीक है। तो ओके, रिमेंबर, अब जो सेल, इस सेल को हम कट भी कर सकते हैं, वी हैव द कट ऑप्शन हियर। ओके, कट करना है तो कट कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल अबव, इंसर्ट सेल बिलो, तो सेल को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। नाउ सी देयर, सो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे नोट्स लिखनी है। ओके, मुझे पाइथन की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि पाइथन की डेफिनेशन वी हैव सीन दैट पाइथन इज, या इट्स अ हाई लेवल, राइट, इट्स अ जनरल पर्पस, ओके, कुछ जनरल पर्पस इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मुझे डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट्स अ कोर्स है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कोडिंग कर सकते हैं, बट ओके ठीक है, तो मुझे आप यहाँ पे नोट्स लिखने हैं, तो यस, ओके, राइट द नोट्स देन। ओके, देन गो टू द कोड हियर एंड सेलेक्ट द मार्कडाउन। ओके, ठीक है, मार्कडाउन सेलेक्ट कर दिया। ओके, सो अगेन कम टू द सेल, ओके, एंड यू हैव टू रन द सेल, shift प्लस एन, उसे रन कर, सो दैट विल बी योर नोट्स। तो जो भी नोट्स है, थ्योरेटिकल नोट्स, ओके, तो हम यहीं पे लेने वाले हैं। ओके, सो उसकी डेफिनेशन वाज समथिंग, तो ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, हाँ, हीडिंग भी दे सकते हैं। ओके, नॉर्मली किसी भी नोटबुक के अंदर हीडिंग होती है, उसके अंदर नोट्स होते हैं, तो सीधे अब मुझे एक हीडिंग देनी है, सो मुझे एक कंसेप्ट देखने की, वेरिएबल कंसेप्ट देखनी है, दैट्स माय हीडिंग। उसके अंदर क्या हो गया, अलग अलग नोट्स हो गए, तो ठीक है, मैंने वेरिएबल लिख दिया, बट अगेन वेरिएबल तो कोर्स बाय डिफॉल्ट इट्स कोर्स है। ओके, अगेन गो देयर एंड सेलेक्ट द heading. Okay, so heading, press the OK, come to the cell and run the cell. Okay, that will be the your heading. Okay, तो आप हेडिंग भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो, चेंज करना है, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। ओके, हेडिंग की साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो, बाय यूजिंग हैश, बाय यूजिंग हैश। हेडिंग की साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो यस, वी कैन राइट, यू कैन गिव द हेडिंग, देन आल्सो यू कैन राइट द नोट्स। एंड अनदर थिंग, अब यहाँ पे इमेजेस भी यूज कर सकते हो। ओके, सीधे अब इमेजेस यूज कैसे करनी है, सपोज मेरे पास एक इमेज है, तो मैं एक इमेज लेता हूँ। ओके, एक इमेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सो इन द गूगल आई विल सर्च पाइथन फीचर, यस वी हैव द इमेजेस हियर, या ठीक है, तो ये इमेज राइट जो हमने देखी थी, तो ठीक है, मुझे इस इमेज को यूज करना है। ओके, ठीक है, तो इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज। ओके, कम टू जुपिटर। ओके, इस मुझे यहाँ पे उसे पेस्ट करना पड़ेगा, बट बिफोर पेस्ट, इससे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्कडाउन, पहले मार्कडाउन कन्वर्ट करना है, एंड देन पेस्ट इमेज। ओके, विल गेट द पाथ, ऐसे आपको पाथ शो होगा, रन दो, ठीक है, विल गेट द इमेज। तो हम यहाँ पे इमेजेस भी यूज कर सकते हैं एज एन नोट्स। ओके, ठीक, ओके, या दिस इज द वे टू यूज द जुपिटर। ओके, आफ्टर दैट, अब उसके बाद ओके, रन रन वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वी हैव द शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, दैट्स अ शॉर्टकट, दैट्स अ की ऑन द कीबोर्ड, यूज द शिफ्ट प्लस एंटर। आफ्टर दैट, अब देखो आपकी जो फाइल होगी ये सेव कहाँ पे होगी, राइट। ओके, सो ऑन द होम पेज, आप होम पेज चेक कर सकते हो, ऑन द होम पेज, सो हमारी जो फाइल उसका नाम क्या था, इंट्रो अंडरस्कोर पाइथन। ओके, विल गेट द एक्सटेंशन डॉट आईपीवाई। ओके, जो जुपिटर फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट आईपीवाई। ओके, सिंपल सिंपल पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। ओके, यदि आप एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हो इन वीएस को, इन पाइचार्म, तो वहां पे क्या होगा, डॉट पी वाई होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कोड हम एक ही फाइल के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे उसका जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन अलग होगा। ओके, इट्स अ डॉट आईपीवाई। ओके, इसका कलर यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, दैट मींस इट इज इन द रनिंग। ओके, ये रनिंग मोड में है। ओके, ठीक है, तो फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, होम पेज। ओके, इसे आप क्लोज भी कर देते हो। ओके, होम पेज आपने क्लोज कर दिया, जुपिटर क्लोज कर दिया, फिर से आप जुपिटर ओपन कर सकते हो, एंड ऑन द होम पेज विल गेट द सेम फाइल, इसे फिर से ओपन करके यूज कर सकते हो। ओके, रिमेंबर,
सी देयर, अगेन ओपन इट, अगेन विल गेट द सेम फाइल। ओके, वही फाइल आपको मिल जाएगी। ओके, अगेन यू कैन यूज इट, इसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट सपोज इस फाइल को मुझे शेयर करना है कि किसी फ्रेंड के साथ, या मैं ग्रुप में जो फाइल होगी वो भी क्या होगी, जुपिटर फाइल भी होगी। ओके, सी देयर, तो यस वी कैन डाउनलोड द फाइल, इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, सो इन द फाइल वी हैव द डाउनलोड एज ऑप्शन। तो अलग अलग फॉर्मेट एक्चुअली यहाँ पे। तो यस वी कैन यूज द डाउनलोड एज, ओके, एचटीएमएल भी कर सकते हैं, एचटीएमएल इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑल्सो नोटबुक। ओके, दोनों भी ऑप्शन बेस्ट है, तो कौन सा भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, मोस्टली यूज द नोटबुक। मतलब आपकी जो फाइल होगी एज अ नोटबुक भी क्या होगी, डाउनलोड होगी, जुपिटर नोटबुक। ओके, डॉट पी वाई भी है, पाइथन फाइल भी है, बट ठीक है सिंगल फाइल के लिए अच्छा है। ओके, बट यदि नोटबुक है तो नोटबुक ही क्या करो, डाउनलोड। ओके, सी देयर, ओके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सी आई गॉट द इंट्रो अंडरस्कोर पाइथन डॉट आईपी। ये फाइल आपकी डाउनलोड होगी, इसे आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो यूज भी कर सकता है इस फाइल। बट वो कैसे यूज करेगा? ओके, ठीक है, हमने शेयर की किसी फ्रेंड के साथ, या मैंने ग्रुप पे जुपिटर फाइल डाल दी है, आपने उसे डाउनलोड कर दिया, बट आपको यूज करना है तो डायरेक्टली फाइल ओपन नहीं होगी। तो उस फाइल को आपको करना क्या पड़ता है, गो टू द होम पेज। ओके, तो वी हैव द अपलोड ऑप्शन हियर। ओके, उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक पे, देन यू कैन यूज इट। सो यस, क्लिक ऑन द अपलोड। तो हमारी फाइल कहाँ पे, डाउनलोड सेक्शन में है। ओके, इंट्रो टू पाइथन। ओके, तो ठीक है, इसे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, बट अब यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ओवरराइट होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस ये फाइल प्रेजेंट है। या तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके, या तो ओवरराइट हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरराइट कर देता हूँ, तो ये फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगेन यू कैन यूज इट, बाद में इसे फिर से यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वे टू डाउनलोड द फाइल। ओके, उसे शेयर भी कर सकते हो। अदरवाइज अब ये जो आपको होम पेज है, ये आपको सी ड्राइव के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो इन द सी ड्राइव, ओके वी हैव द यूजर। ओके, इन द यूजर आई हैव द एडमिन, मे बी आपका पाथ थोड़ा सा अलग हो सकता है। ओके, इन द एडमिन, सी हियर, सो विल गेट दिस फाइल। ओके, सभी फाइल आपको इंट्रो अंडरस्कोर फाइल। ओके, ओके, एडमिन के अंदर आपको ऊपर ही आपको सभी फाइल क्या होगी, शो होगी। तो यहाँ से भी आप इसे कॉपी पेस्ट करके या शेयर करके कर सकते हैं, या वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, yeah, this is the way to use the Jupyter notebook. Mostly 95% we are using the Jupyter notebook because it's a very simple। यहाँ पे हम बहुत सारी कोडिंग कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी जा सकते हैं। ओके, नॉट इन द वीएस कोड आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। और अब वीएस कोड के अंदर क्या होगा, हर एक फाइल अलग अलग करनी पड़ेगी। ओके, तो हम एक ही फाइल के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके, दैट्स द मेन। ओके, फॉर स्टार्टिंग पर्पस इट्स अ गुड वन टू यूज द जुपिटर नोटबुक। हाँ, मोस्टली आप डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो ठीक है, 50% पाइथन कंप्लीट होने के बाद यू कैन ट्राई फॉर द वीएस कोड और द पाइथन, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आपको वही यूज करना पड़ेगा। ओके, हम जुपिटर नोटबुक यूज नहीं कर सकते। ओके, रिमेंबर। ओके, हाँ, यदि आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के लिए जा रहे हो तो इट्स अ गुड वे टू यूज द जुपिटर नोट। ऑल्सो वी हैव द गूगल कोलैब, बट इट्स ऑनलाइन इंटरप्रेटर। ओके, यदि आपके पास सपोज रैम कम है, ओके, रैम कम है, या आपका लैपटॉप का स्पीड कम है, तो यस वी कैन यूज द गूगल कोलैब। सी हाउ टू यूज द गूगल कोलैब। आपको लगता है कि स्पीड कम है, ओके, आपका लैपटॉप का, तो यस यू कैन यूज द गूगल कोलैब। इन द गूगल यू हैव टू सर्च द गूगल कोलैब। ओके, आपको गूगल कोलैब सर्च करना है। ओके, गूगल, इट्स विल गेट द ऑफिशियल वेबसाइट, वेलकम टू कोलैब बाय द गूगल। ओके, इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक द, या विल गेट द न्यू नोटबुक। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू नोट, क्लिक। तो आपकी एक नोटबुक क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी। बट रिमेंबर इट्स ऑनलाइन इंटरप्रेटर, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सीधे ओके, वही फॉर्मेट है, तो यहाँ पे भी हम कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। ओके, हाई। ओके, इसे आपको रन करना है, शिफ्ट प्लस एंटर, और वो अदरवाइज यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट लाइन के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, बट उसके बाद फास्ट होगा, कोई प्रॉब्लम। ओके, ये भी ऑटो सेव है, बट ये फाइल आपकी कहाँ पे सेव होगी? नहीं, ये फाइल डाउनलोड नहीं, ये फाइल होगी आपके गूगल ड्राइव में। ओके, जो भी आपका मेल आईडी ओपन है वहाँ पे,
ओके, ड्राइव के अंदर वो फाइल आपकी क्या होगी, मतलब सेव होगी ऑटोमेटिकली। सी आई गॉट द आउटपुट हाई। हाँ, इसे भी यहाँ से डाउनलोड हम कर सकते हैं, वी हैव द ऑप्शन डाउनलोड। ओके, ठीक है, आपने कोडिंग कर दी, बाद में आपको इसे जुपिटर नोटबुक में यूज करना है बाद में, तो इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हो। अदरवाइज ये फाइल आपको कहाँ पे शो होगी, हाँ, इसका नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फाइल आपके गूगल ड्राइव ड्राइव पे लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। ओके, रिमेंबर। सो आप जा सकते हो, जो आपका गूगल ड्राइव होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके पास कौन कौन सी फाइल्स है। ओके, ड्राइव के अंदर। Okay, open the drive and you can check here. See there, untitled 21 you edited just now. Okay, ये फाइल मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो सेम थिंग, जैसे जो भी आप अब तक आपने जो भी फाइल यूज की है, सभी फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, दैट्स अ गूगल कोलैब। ओके, या ओके, सो दिस इज द वे टू यूज द गूगल कोलैब। ओके, सो ये आपने ओके, ये आपको रन ऑलवेज ऑन रखना है, राइट, ये विंडो, बिकॉज दिस इज सर्वर। ओके, यदि आप सपोज, यदि आपकी फाइल है, सो आप कुछ कोडिंग कर रहे हो। ओके, और इसके बाद आपने इसे क्लोज कर दिया, इस विंडो इसे क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब होगा कनेक्टिंग टू कर्नल। ओके, यहाँ पे कुछ एरर मिलेगा, सो कनेक्शन फेल्ड, इसका मतलब होगा यहाँ पे कोड रन नहीं होगा। सब जैसे मैंने लिख दिया एज इक्वल 12। ओके, रन द कोड, चेक इट, विल गेट अ स्टार हियर। स्टार का मतलब होता है इट इज ऑलवेज इन रनिंग मोड। ये रनिंग मोड में चला गया, विल आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो ठीक है, तो ये आपको क्लोज नहीं करना, रिमूव। ओके, तो फिर से आप इसे ओपन कर सकते हो। ओके, जुपिटर को क्लोज करके यू कैन अगेन ओपन द जुपिटर। इसे फिर से ओपन कर सकते हैं, एंड यस, यू कैन यूज द जुपिटर। ओके, ठीक है, सो रिमेंबर हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन। फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। Okay, python.org. After that you have to install you have to install the Anaconda, because we are using the Jupyter notebook, and Jupyter notebook is available in the Anaconda। ठीक है, यदि आपको Anaconda नहीं यूज करना है, मुझे सिर्फ Jupyter notebook चाहिए, तो स्पेशली आप Jupyter notebook भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको लगता है मेरे पास मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं है, सो यस, यू कैन इंस्टॉल जस्ट Jupyter notebook। ओके, उसकी भी स्पेशल वेबसाइट है, जस्ट Jupyter notebook। ओके, सो गो देन। ओके, या इट्स अ जुपिटर नोटबुक, तो ये ओके, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो इंस्टॉलेशन, विल गेट द फाइल, तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट हाँ, अब ये होगा कि यहाँ पे जो बहुत सारी लाइब्रेरीज है डेटा साइंस के लिए लगने वाली, वो यहाँ पे बिल्ट इन नहीं होगी। ओके, तो उसे हमें हर बार मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा बाद में। पाइथन के लिए तो कोई जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए, बट यदि आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हो, तो उसे सेपरेटली आपको इंस्टॉल करना है। बट ठीक है, यदि आपको आपके पास रैम कम है, आपकी सिस्टम जरा ओके थोड़ी सी कम है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन आपका कम है, तो यस वी कैन यूज जस्ट जुपिटर नोट। ओके, अदरवाइज गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हो, दैट्स ऑनलाइन इंटरप्रेटर। सिस्टम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, राइट, सिस्टम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, रिमेंबर। ठीक है, ओके, and the session that will be the form Monday to Thursday, 4 days in a week। Okay, time will be the same, 4:30 to 6, right, 4:30 to 6। ओके, एंड इट्स अ हाइब्रिड बैच। आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो, दोनों भी। ओके, ठीक है, आज ये भी स्टॉप कर लेते हैं। ओके, सो बट आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है आज। ओके, मे बी कल कल यदि न्यूज और भी ऐड हो जाते तो फिर से रिपीट हो सकता है, एक दो सेशन। ओके, मे बी, ठीक है। ओके, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा, एक दो सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो टुडे विल स्टॉप हियर, सो एनी डाउट? ओके, ठीक है। ओके, रिमेंबर 99% वी आर गोइंग प्रैक्टिकली। ओके, जो भी होगा सब प्रैक्टिकली होगा। ओके, जो थ्योरेटिकल नोट्स है वो तो हम वहीं पे लेने वाले हैं। ओके, ओके, ठीक है, सो यस, विल स्टॉप।